Hello and welcome to WeLearn Virtual Learning Network. The agenda of today's session is company formation and their business forms. The agenda of today's session is, first of all, we will discuss the nature and characteristics of joint stock company, their various classifications of companies, and we will discuss the public and private companies. After that, we will discuss the merit and limitations of joint stock company and the suitability. We will discuss the joint stock company, the partnership, and the role of cooperatives. In this slides, first of all, we will discuss what do you mean by joint stock company. As we know that before a startup for any organization, there is a need to define the various forms of organization. As an entrepreneur, we can run our business as a sole proprietor, in a partnership mode, or as a corporation, or you can say the company. So, joint stock company, जिसको कि हम ये कह सकते हैं एक ऐसा एसोसिएशन या पर्सन जिससे कि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एकत्रित होते हैं. बेसिकली अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस which is formed for a legal obligations. It's created by law and it can be dissolved by law. इसको आप क्या कर सकते हो? कंपनी वो होती है जिसको कि आप लॉ के फॉर्मेशन से डिसाइड करते हो और इसको आप डिसॉल्व भी लीगल ऑब्लिगेशन के थ्रू करते हो. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए उसकी लीगल एग्जिस्टेंस जरूरी होती है. सो कंपनी की जो भी लीगल एग्जिस्टेंस है, अगर उसके मेंबर्स डाई भी कर जाएंगे, उनकी डेथ भी हो जाएगी, तो कंपनी हमेशा अपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी. So, its members contribute money for some common purpose. So, in a nutshell, we can say that joint stock company is a voluntary association of persons generally formed for undertaking some big business activity. Let's move on in my next slide. A joint stock company does not come into existence on its own. Joint stock company कभी भी अपनी खुद की existence में नहीं आती. इसमें हमेशा आप एक planned action करते हो, एक आपका conscious efforts होता है जिससे कि आप information को achieve कर सकते हो. इसके कुछ legal formalities होती हैं. So company वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो. उसमें एक लीगल ऑब्लिगेशंस होता है और आप इसको लीगल परपेचुअल सक्सेशन के थ्रू रन कराते हो. नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी हमेशा उसका एक कृत्रिम व्यक्तित्व होता है. कंपनी की जो एग्जिस्टेंस होती है वो हमेशा रिटन फॉर्म में होती है. you can't see a company. Basically, it's a part of an intangible process. So, joint stock company जो basically collaboration होती है, association of person है, उसमें आपकी एक artificial person है, वो legal and perpetual succession होती है. The company comes into existence only when it is registered under the Indian Companies Act. कंपनी एग्जिस्टेंस में तभी आती है जब वो इंडियन कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड की गई है.
जैसा कि आप जानते हो, कंपनी के एसोसिएशन को एक फॉर्म करने के लिए उसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसको आप परचेज करते हो, सेल करते हो और एम्प्लॉयबिलिटी को डेवलप करते हो। कंपनी की जो सील है वो उसकी ऑफिशियल सिग्नेचर होती है। जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी जो लायबिलिटीज हैं वो लिमिटेड है एंड जितने भी शेयर्स उन्होंने होल्ड कर रखे होते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। So for the purpose of joint stock company, it's a collaboration, it's an association of people and it's an artificial person. Let's move on in my next slides. Now the point comes that how we can classify the joint stock companies. On the basis of joint stock companies, we can classify it on two types, that is private company and public company. So first of all, we will discuss the private company. As we know that in India or in any organization, we can see the private company. Private company वो company जिसमें कि आप फॉलोइंग फीचर्स के थ्रू उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कैन नॉट हैव मोर देन 50 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में 50 मेंबर्स से ज्यादा के लोग नहीं हो सकते। वी कांट इनवाइट द पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर्स एंड डिवेंचर्स। आप पब्लिक को ओपन फोरम में शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट, शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकते। It restricts the rights of the members to sell or transfer their shares. जो भी प्राइवेट कंपनी होती है उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप अपने राइट जो शेयर्स को सेल करने के राइट्स हैं उसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। It must have a minimum paid up share capital of 1 lakh rupees. So we can say that these are the some various characteristics of private companies which is associated with joint stock companies. Now there is a need to understand the public company. अब हमें पब्लिक कंपनी को समझने की आवश्यकता है। पब्लिक कंपनी वो होती है जो हमेशा सोशल मासेस के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए रन कराई जाती है। पब्लिक कंपनी मस्ट हैव द फॉलोइंग फीचर्स। उसके कुछ फॉलोइंग फीचर्स हैं। नंबर 1, it can issue the shares in a public and it can give an open invitation. The number of members are minimum 7. While starting public company, the minimum needs of 7 members, and on the limit of maximum numbers there is no limitation. So public company वो कंपनी होती है जिसमें कि आप जो भी सार्वजनिक फोरम पे ओपन इनविटेशन के थ्रू आप पब्लिक से शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप कंपनी की जो बेसिक फंड की रिक्वायरमेंट्स होती है उनको आप फुलफिल कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर्स इट शुड बी 7 एंड जो मैक्सिमम लिमिट की लिमिटेशंस हैं वो यहाँ पे मिनिमम लिमिटेशंस हैं, नो लिमिटेशंस। There is no restrictions on the transfer of shares. पब्लिक कंपनी में आप शेयर्स को ट्रांसफर करने की भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एंड अ पब्लिक कंपनी must have a minimum paid up capital of 5 lakh rupees, while in private the limitation was 1 lakh and in public there is a limitation of 5 lakh. Now we will discuss in our next slide that firstly we have studied the company and their the company and their classification, and now we will discuss the formation of a company. The formation of a company involves the following stages. Now we will discuss the formation of a company. As we have already studied in our previous slides that company basically an association
which is run by an entrepreneur so that they can maximize the wealth and organization's profitability. So we have already studied their classifications, and now we will discuss the formation of a company. In the formation of a company, we will discuss the various stages so that we can create and form a company. Before going to start the nature of a company, first of all, there is a need to understand the stages of a company. The first stage is promotion. After that, incorporation. And the third stage is flotation or capital subscription. And the fourth stage is commencement of business. So as we know that प्रमोशन करना, कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो प्रमोटर कहलाता है. सबसे पहले वो कंपनी की जितनी भी लीगल प्रोसेस हैं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के गोल, एक प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी के को प्रमोट करता है. इनकॉर्पोरेशन, कंपनी को फॉर्म करने के लिए उसको उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराना पड़ता है, जिसको आप इनकॉर्पोरेशन कहते हो. फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की जो थर्ड स्टेज है, कोई भी कंपनी चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक, उसकी जो फ्लोटेशन चार्जेस हैं या जो भी उसकी फ्लोटेशन फॉर्म्स हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, वो कंपनी की क्रिएशन में हेल्प करता है. देन वी कैन run or set up the business, or after that these formalities we are able to commence the business. So these are the stages of a company formation. Let's move on in the next slide. A joint stock company may be promoted in the following ways. Joint stock company को हम किसी भी दो तरीके से प्रमोट कर सकते हैं. सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप को या जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसको हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं. अभी आपने पढ़ा कि जो भी हमारी कंपनी है उसको चलाने के, बिजनेस को चलाने के 3 फॉर्म्स हैं. सबसे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, जो सिंगल व्यक्तित्व है, सिर्फ एक पर्सन अपना चाहे अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करता है, खुद ही रिस्क बियर करता है. एंड द सेकेंड मोड इज पार्टनरशिप. पार्टनरशिप साझेदारी, एक पार्टनरशिप डीड के थ्रू, एक कोलैबोरेशन के थ्रू, म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू बिटवीन 2 पार्टनर्स वी कैन स्टार्ट द बिजनेस. एंड द थर्ड स्टेज इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, बेसिकली which is a legal association of a person and the company have a common seal. After that, we can set a new company so that we can start the business in a new line. हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप को या प्रोप्राइटरशिप को एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं. यह हमारा दूसरा तरीका है कि अपनी नई कंपनी को नए बिजनेस की लाइन पे सेटअप करें. सो दीज आर द मोड्स थ्रू विच वी कैन प्रमोट द फॉलोइंग जॉइंट स्टॉक कंपनी. लेट्स मूव ऑन इन माय नेक्स्ट स्लाइड. Basically, there are stages in promotion. So how can we promote the business? So first of all, while designing the business idea, there is a need to develop a plan. That's known as business plan. For every entrepreneur, there is a need to manage the promotion strategies. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए सबसे पहले प्रमोशन की स्टेजेस जरूरी है, जिसमें कि आप सबसे पहले बिजनेस प्लान को डेवलप करोगे. उसके जो आइडियाज हैं, जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज हैं, नए बिजनेस के जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहे हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजीज है, आपकी बेंचमार्किंग क्या है, उनको सेटअप करके आप बिजनेस को प्रमोट करने के एफर्ट्स करोगे. आफ्टर दैट there is a need to detailed investigation, means आपको मार्केट की रिसर्च करनी है, मार्केट की डिमांड, मार्केट की अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल, प्रपोजिशन, जिस टर्म्स में आप मार्केट की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको करते हो, जो उसकी साउंडनेस है, जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है, कमर्शियल वायबिलिटी है, इन सारी चीजों की एनालिसिस के थ्रू आप एज ए प्रमोटर मार्केट की फिजिबिलिटी को चेक करते हैं,
प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी को चेक करते हैं, एंड देन यू आर एबल टू प्रमोट योर ऑर्गेनाइजेशन। एंड जब हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो हमारा जो मेन फाइंडिंग्स है उसमें आप रिपोर्ट को कंपाइल करते हो, जिसको कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द मार्केट रिसर्च। With the help of this report, we are able to judge that are we able to get the appropriate return। हम इस रिपोर्ट की सहायता से ये जज कर सकते हैं, ये हमें हेल्प करती है कि जो भी हमने फर्दर एनालिसिस करी है उससे क्या हम एप्रोप्रिएट रिटर्न मार्केट से ले सकते हैं या क्या ये हमारे रिस्क को मिनिमाइज कर सकती है। तो इस तरीके से प्रमोशन के लिए सबसे पहले आपको मार्केट की डिटेल्ड एनालिसिस करनी होगी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके आप इस कंपनी को रन करा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज असेंबलिंग, गैदर करना। वंस जब आप प्रमोट एज ए प्रमोटर आपका काम खत्म हो जाता है, देन हमारे माइंड में एक आइडिया आता है कि हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करें। मीन्स नाउ द पॉइंट इज टू मैनेज और टू implement these steps. So first of all, there is a need to join hands, there is a need to collaborate, and we are able to follow these steps. सबसे पहले आपको संगठित होकर के अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको कंपनी के जो नॉर्म्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। आपको सर्टेन कुछ रजिस्ट्रेशन, कुछ पेटेंट्स लेने होंगे जिससे कि आप लायबल हैं अपनी एसेट को यूज करने के लिए। कोई विदाउट योर कंसेंट कोई भी दूसरा उस चीज को यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट फाइनेंसिंग ऑफ प्रपोजिशन। आफ्टर दैट जब कंपनी को आप रन कराते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स को अरेंज करना। इस स्टेज में फाइनेंशियल प्लान को प्रिपेयर करके कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, किस मेथड से आपने कैपिटल को इश्यू करा है, इन सारी चीजों को आप एस्टिमेट करते हो, सोर्सेस को जनरेट करते हो और इस तरीके से आप फर्म की फंड्स को डिसाइड करते हो। Structure, here you can see the various structure of formation of company। जैसे कि मैंने डिस्कस किया, प्रमोशन है, इनकॉर्पोरेशन है, फ्लोटेशन है एंड द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। देयर आर 4 stages basically। First of all, promotion indicates ideas discovery, detailed investigation, assembly and financing। In incorporation means the registration process. So there are 2 articles. First of all, memorandum, and the second one is article of associations, so that we can develop the plan in a legal manner. After that, consent, undertakings, the rights and qualification of the shares, statutory declaration. In flotation, how we are able to float the money, how we are going to subscribe the funds. So with the help of savings consent, there is a need to appointments, we can issue prospectus, and after that we are able to listing applications, then we are able to allot the shares from public forum for public. So in a public forum or for public process. After that we are able to commence our business. So these are the basic structures of formation. Suitability. After that we will discuss the suitability of joint stock company. It depends on the volume. जो भी आपके बिजनेस का वॉल्यूम है, क्या वो लार्ज है? अगर लार्ज है तो उस स्केल पे आपको ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। मैनेजमेंट नीड आप कैसे पूरा करते हैं? जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जिस मोड से आप अपने बिजनेस को रन कराते हो, उसकी स्किल्स को मैनेज करने के लिए, प्रोफेशन को मैनेज करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सारी चीजों को मैनेज करना होता है। देन right form of organization, as you can see, there are the basic characteristics, availability of finances,
Advantageous form company, least advantageous sole proprietor. Organizing और dissolving के लिए sole proprietorship है क्योंकि वहां पे आप डिसीजन ले सकते हो सिंगल वोट में. कंपनी के लिए वो लीस्ट एडवांटेजेस है क्योंकि वहां पे कंबाइंड एफर्ट्स के साथ आप लीगल ऑब्लिगेशंस के साथ यू हैव टू टेक डिसीजन. ईज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को रन कराने के लिए, मैनेज करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए एडवांटेजेस है एंड लीस्ट एडवांटेजेस है कंपनी के लिए. बिकॉज there is a basic difference between sole proprietorship and company. Company is liable to follow all the legal obligation, and on the other hand, sole proprietorship is not bound to follow all the legal obligation. He is his own decision maker. So there are the basic functions. On the other hand, now it's the term of multinational corporation. As you have heard that multinational corporation plays a vital role in present scenario. मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन वो संगठन है जिस एक जगह रजिस्टर्ड होती है और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में होती है. होस्टिंग वन कंट्री की होती है और उसकी सब्सिडरी यूनिट्स वो वेरियस कंट्रीज में होती है. Which is registered as a company in one country but carries on business in a number of other countries by setting up factories, branches, subsidiary units. For example, McDonald's. Their volume of sales, profits and assets are generally in very huge amount. उनका जो profit का shares है, जो volume है, वो बहुत ही large amount में होते हैं. Now you can also define the companies in less commonly seen types of companies. ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनको आप कम जानते हैं. आपने प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के उनको आपने हमेशा सुना होगा, बट कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको आप फैमिलियर जिनसे नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पेटेंट्स के मोड पे होती हैं, जिनके जो पेटेंट्स होते हैं वो हमेशा कॉर्पोरेशन ही या सोल जो हमारा मेन मोटिव होता है वो कंपनीज का होता है. कुछ ऐसी चार्टर कंपनीज हैं जैसे कि जो मॉडर्न कंपनीज के लेजिस्लेशन है वो 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज के लिए है, प्राइवेट एंड पब्लिक. बट कुछ ऐसे रेयर केसेस में, फॉर एग्जांपल इंपीरियल बैंक, ब्रिटिश बैंक्स, यस बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये सारे चार्टर बैंक्स के नाम से, इनको आप चार्टर कंपनीज के नाम से जानते थे. स्टैच्यूटरी कंपनीज बहुत ही रेयर आजकल देखी जा सकती हैं. कुछ ऐसी कंपनीज जो प्राइवेट स्टैट्यूट में पास की गई थी सर्टेन रेलेवेंट ज्यूरिसडिक्शन के लिए. कुछ अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं जिसको आप कहते हो लिमिटेड. एल स्टैंड्स फॉर लिमिटेड. सो पीएलसी, पब्लिक लिमिटेड, इंडिकेट्स कंपनी दैट इट शेयर्स आर वाइडली हेल्ड. सबके लिए ये ओपन है, राइट? तो स्टैच्यूटरी कंपनीज, चार्टर कंपनीज, PLCs, there are the various companies जिनको आज आप बिजनेस के सेटअप में कॉमनली यूज नहीं कर सकते. नाउ कुछ ऐसे भी हैं जिनको आप रेगुलर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट. पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिकली ट्रेड कर सकती है, फंड्स को सब्सक्राइब कर सकती है. बट ऑन द अदर हैंड प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिनमें आप शेयर्स को जनता के समक्ष ओपन पब्लिक फोरम पे नहीं प्रेजेंट कर सकते. कुछ उसके रिस्ट्रिक्शंस हैं, जुरिसडिक्शंस हैं, मैक्सिमम नंबर डिसाइड कर रखे हैं, शेयर होल्डर्स जो उनकी लिमिटेशंस डिसाइड कर रखी हैं. सो ये सारी कंपनीज के फॉर्मेशंस के टाइप्स हैं. कुछ गारंटीड लिमिटेड कंपनीज होती हैं. कॉमनली वो कंपनीज होती हैं जो नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज की जाती हैं. फॉर एग्जांपल क्लब्स, चैरिटीज. कुछ ऐसी गारंटीज कंपनीज होती हैं जो सर्टेन अमाउंट्स में यूज की जाती हैं. Those companies goes into insolvent, but otherwise they have no economic rights in relation to company. इंग्लैंड में इस तरीके की कंपनीज पाई जाती हैं. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो हमेशा एक बिजनेस वेंचर्स के लिए यूज की जाती हैं. स्पेसिफिकली a limited company is a company in which the liability of each shareholder is limited.
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, फॉर सपोज दो शेयर होल्डर्स हैं और दोनों ने, एक ने 1 लाख रुपीस के शेयर्स परचेज किए, एक ने 2 लाख रुपीस शेयर्स के परचेज किए। सो इस केस में क्या होगा, कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ ईच शेयर होल्डर इज लिमिटेड, उसकी 1 लाख शेयर तक की लिमिटेड है और इसकी 2 लाख रुपीस तक की लिमिटेड है बी की। सो ये जो केस है ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए है। तो इस तरीके से द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, दिस टाइप ऑफ कंपनी इज कॉमन इन इंग्लैंड। इस तरह की कंपनी आप इंग्लैंड में कॉमनली देख सकते हो। गारंटी के फॉर्म में इसको आप हाइब्रिड एंटिटी भी कह सकते हैं, जो नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज की जा सकती है, राइट। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज एलएलसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एलएलसी, वो कंपनी होती है जो स्टैच्यूटरली ऑथराइज की जाती है कुछ स्टेट्स में, जिनको आप लिमिटेड लायबिलिटी के फॉर्म में मैनेज कर सकते हो। जो मेंबर्स हैं या मैनेजर्स हैं उनकी लिमिटेशंस होती हैं बेसिकली ट्रांसफर ओनरशिप पे। तो ये आपकी लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज कहलाती है। अनलिमिटेड होती है विद और विदाउट अ शेयर कैपिटल। कुछ ऐसी हाइब्रिड एंटिटी होती है जहां पे कंपनी जिनकी लायबिलिटी या मेंबर्स जो शेयर होल्डर्स के होते हैं उनकी कंपनी या डेट्स लिमिटेड नहीं होती, वो आपकी अनलिमिटेड कंपनीज है। मीन्स फॉर सपोज इफ कंपनी इज गोइंग टू डिसॉल्व, then it is totally the responsibility